He is so hot, but वो fucking दिल्ली में रहता है तो और एटलीस्ट मुझे attention देता है. That's like a good thing about him, unlike some people. Hi besties, welcome back to my channel. So this video is not something that's like happy topic or anything for that matter, but मैं बहुत खुश हूँ because हाँ मैं literally mentally fucking crazy हूँ. That's what my therapist says. I don't even have a therapist, but I just think कि अगर मैं थेरेपी में कराऊंगी तो ऐसा ही बोला जाएगा. I never talk about topics like this. मुझे ऐसा लगता है कि भाई मैं लोगों को अपने लाइफ के दुखड़े बता के क्या करूंगी. It's like सबके ब्रेकअप हो रहा है, सब sad life जी रहे हैं already. So I was like, why not? Why not tell the world my story time? The story starts when it was hot and it was summer, and no, it doesn't go like that. Before starting this video, if you guys are wondering why I'm so high on energy, it's because like my recent obsession with matchas, and especially the Cosmix matcha, like it is so good. That is literally the main reason why I'm so always hyperactive. It helps me focus. I'm literally thinking about replacing coffee by this because it's the same. It literally gives me the same amount of energy and it's so much better, and all the Pinterest girls use it. So I've been also just obsessed with it lately. The main reason why I love them is because they are vegan. Like as you all know, I'm like the huge animal supporter and I always say use plant-based stuffs, and this is literally the best. Like, you know, unlike others, they're not promising overnight results, like super unrealistic stuff. Like you just have to be consistent with whatever you want. Like matcha, it will give you energy, it will help you increase focus. So like you just have to be consistent, and trust me, you guys are going to see the results. Let me take you guys through my matcha ritual. I love having matcha. It gives me a clear and glowing skin also. So what I do is I take a clear glass. I add like 2 spoons of matcha in it because I like my matcha to be a little strong. I love the Cosmix matcha. And then I have already added half a cup of water. And then my favorite part is adding milk into it, and look, like the whole process looks so satisfying in Pinterest. I like to have my matcha cold. You guys can have it hot or however you guys like it. Plus it tastes so good. Just go get yours from Cosmix India, and you guys can use my code VRIDDHI10 to get 10% off. देखो मैं हमेशा तुम लोगों की help करती हूँ to get stuff. And yeah, I'm literally obsessed with their brand, and they have such other good mixes as well. Like there's stuff to help you sleep and like good stuff. So yeah, just go check them out. जब मैं स्कूल में थी, I literally had the worst school experience. It's like मैं लोगों को सुनती हूँ that they have such a good school experience, और मुझे इतना शॉक फील होता है. I'm like, भाई कैसे? Literally मैंने अपना पूरा स्कूल लाइफ बिताया है विदाउट फ्रेंड्स. मतलब जो रिपोर्ट कार्ड होता है ना, उसमें अटेंडेंस में आई थिंक मैंने 75% अटेंडेंस भी नहीं किया था. बेसिकली टिल 5th grade आई थिंक आई हैड फ्रेंड्स. और फिर जब आप हाई स्कूल एंटर करते हो, फिर आप वो सबको लाइक वैसे लूज करने लगते हो, और वैसा ही मेरे साथ सेम हुआ. माई बेस्ट फ्रेंड who I lost, ठीक है, as she was like 10 times harder than me in school. Like not anymore. No, just kidding. It was very difficult because I lost my friends. She got new friends. She was moving on, and ऐसा लगता था she was just hanging out with me. Like भाई ये हाँ मेरी एक friend थी ज़माने में. फिर मेरे लिए बहुत difficult होने लग गया to make new friends. I did not know how to make new friends because I started hating school. So it was very like, hey भगवान, I am lonely. Period. जब मैं 8th standard में आई, वो टाइम था जब लाइक थिंग्स मेरे लिए बहुत हार्ड हो रही थी, और मेरे को बस स्कूल जाना ही नहीं था. मैं मेरी माँ के सामने रो चुकी थी कि मैं स्कूल नहीं जाना. बिकॉज पता क्या होता था, कोई प्रोजेक्ट होता था तो मेरे को कभी कोई इंक्लूड नहीं करता था. मैं हमेशा लास्ट पर्सन होती थी, और फिर टीचर को मुझे कोई ग्रुप में डालना पड़ता था ज़बरदस्ती, बिकॉज नो वन वॉन्टेड मी. 9th के अराउंड मैं गई, और देयर वर दीस 2 गर्ल्स. तो उन लोगों ने बेसिकली मुझे अपने ग्रुप में ले लिया एज अ साइड चिक, यू नो, लाइक एज अ साइड अनोइंग हु जस्ट डिडंट फिट इन, डिडंट हैव अ बॉयफ्रेंड. वैसे करके वो लोग ने मुझे ले लिया. बट दे वरंट माई फ्रेंड्स. लाइक अगर कहीं बाहर जाते तो मुझे कभी बता नहीं थी कि बाहर जा रहे हैं. अगर कुछ कर रहे हैं तो मुझे कभी कुछ पता नहीं रहता था. फिर ना इन सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स बन गए, ठीक है. तो बच्चे से अच्छी बात है, दैट्स व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू एट योर टीनेज. लाइक मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, वो अलग बात है. ये लोग मुझे बार बार ऐसे बोलती थी, ओ मेरे साथ सब हुकअप करना चाहते हैं. लाइक ही हैज ऑल्सो आस्क्ड मी.
also asked me out on a date। अरे ना, जब मैं 10th स्टैंडर्ड एंटर करी तो अब ये सारी लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं, ठीक है। ये लोग हर किसी के साथ हुकअप कर रही हैं और इन लोग को लग रहा है ये बहुत बड़े पता नहीं कौन से इन लोग क्राउन अचीवमेंट मिलने वाले हैं। उस टाइम मैं साइड बाय साइड अपना यूट्यूब भी करती थी, ठीक है। लाइक इट यूज्ड टू गेट 20 व्यूज बिकॉज मुझे हमेशा से बहुत पसंद है यूट्यूब वीडियोज बनाना, तो मैं बस बनाती थी। लाइक मैंने ऑफिशियली अपना चैनल स्टार्ट किया 2021 में, बट हाँ सोशल मीडिया स्टार्ट किया ऐसे बोल रही है एज ऑफ अब तो मैडम कैरी मिनाटी बन चुकी है। लाइक मेरी एकमात्र फ्रेंड ये पूरे मीन गर्ल ग्रुप में एक अच्छी लड़की थी वेदा, तो मैं उससे बात करती थी और मैं उसको बस ऐसे ही बता रही थी कि मेरे ये ड्रीम है। फिर जब हम लोग रोड ट्रिप मतलब स्कूल की पिकनिक थी और हम लोग पंचगनी जा रहे थे, ये मैडम ने पूरा हमारा कॉन्वर्सेशन ईवसड्रॉप कर रही थी। बाय ये मैडम आई मेंट द मीन गर्ल नॉट माई फ्रेंड। और यार मेरी माँ इतना लाउड बात करती है बैकग्राउंड में, सॉरी। और ये मैडम ने डिसाइड किया कि वाई नॉट, जब सारे लड़के बैठे, ठीक है, 8-10 लड़के इसके साथ बैठे हुए हैं, उसी टाइम पे लेट्स ब्रिंग आउट द टॉपिक ऑफ प्रीति वर्मा। She would be a YouTuber, but how will you be a YouTuber? You will have to lose a weight थोड़ा for that. Like उसमें थोड़ा फेस भी आपका मैटर करता है भाई। मतलब ये इसने मुझे ये लिटरली सबके सामने बोला था, and you know they don't pay that much. I'm like मैं क्या बोलूँ इस बंदी को, मुझे फैट शेम करी है, मुझे अगली शेम कर रही है, if that's even a word। फिर वो मेरे को पता नहीं किधर से मेरी बहन से कंपेयर करने लगी। But they like I get your sister, she has such a good body, she has everything। उस टाइम तो भाई मेरे को इसके बॉयफ्रेंड को बता देना चाहिए जो इसके बाजू में बैठ के ही कर रहा था कि भाई ये तेरे पे चीट कर रही है। I used to do this vlog में सीरीज मैंने एक बार की थी, बट मैंने वो पूरा 10th ग्रेड में डिलीट कर दिया वो सब, क्योंकि ना इसने एक बार मेरी स्टोरी डाली थी इंस्टाग्राम पे मेरा लिटरली वीडियो का मजाक उड़ाते हुए, क्योंकि मैं टमेटो को टमेटो बोल रही थी। और तो मैडम ने स्टोरी डाली कि बहुत साउथ दिल्ली एक्सेंट है इसका, ये है वो है, लिटरली लाइक व्हाट। और उसके ऊपर से bitch had the audacity to tag me, बट उसके बाद मैंने वो सारे वीडियोस को प्राइवेट पे डाल दिया बिकॉज आई वाज लाइक नो। फिर नेक्स्ट डे जब मैं स्कूल गई इसकी अमेजिंग स्टोरी के बाद, आई यूज्ड टू पोस्ट पिक्चर्स लाइक दीस। दे आर नॉट देयर ऑन माय इंस्टाग्राम एनीमोर बिकॉज ये सब 2020 में मैं पोस्ट करती थी और ये सब अब एग्जिस्ट नहीं करता बिकॉज मैंने स्कूल खत्म होने के बाद सोशल मीडिया स्टार्ट किया। ये एक लड़का गैब है, उसने ना मेरी एक फोटो लाई, उसके फकिंग न्यू आईफोन लाया था, उसने आईफोन 7 खरीदा था और ऐसे शो ऑफ कर रहा था कि भाई उसने दुनिया का क्या खरीदा है भगवान जाने। इसने ऐसे लाया, ठीक है, और मेरा एक इन मेकअप वाला फोटो, दिस द फोन और ये मेरी शक्ल है। इसने ऐसे करके सबके सामने स्कूल के लंच टाइम पे इसने ऐसा किया था। एक्सपेक्टेशन रियलिटी। और सारी लड़कियां जो लाइक मेरी आउट ऑफ पिटी फ्रेंड्स बनने का ट्राई करती थी, सब हंस रही हैं। मतलब मैं स्कूल में आज तक नहीं रोई थी, उस दिन मैं ऐसा रोई वॉशरूम में जाके। और इसके बाद भी ये बंदा चुप नहीं हुआ है, इसके बाद इस चूतिए के पास ऑडेसिटी है मेरे को बोलने की इसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं होगा, इसको कोई लड़का कैसे लाइक करेगा, ऐसी दिखती है, ये है वो है। फिर ये लड़की जो क्वीन भी बनती थी उसके बॉयफ्रेंड ने चल रही थी और लिटरली एक बॉल होती है ना टेनिस बॉल, मेरे आंख में मारी थी। यहाँ पे मेरा आंख पूरा सूज गया, मैं लिटरली मेरी आंख से आंसू निकल रहा है और मुझे बोल रहा है सो सॉरी मैंने गलती से मारा है। लाइक हाँ 2 फीट के डिस्टेंस पे तूने मतलब बॉल मेरे मुंह पे मारना सोचा, वो भी गलती से हुआ है तेरे से। मतलब हाँ भाई तेरे से गलती से हुआ है। नाउ लेट्स गो टू वेयर माय बॉडी इमेजेस स्टार्टेड। नाउ दिस वाज माय बॉडी ड्यूरिंग स्कूल, दिस इज माय बॉडी नाउ। बस 56 kgs और अभी मेरा वेट है 44 kgs, 44 to 45 पे फ्लक्चुएट होता रहता है। इफ यू आर गोइंग थ्रू दिस एक्सपीरियंस और अगर आपको कोई फैट शेम कर रहा है, अगर आपको कोई स्किनी शेम कर रहा है फॉर दैट मैटर, प्लीज उनकी बात मत सुनो। चाहूंगी कि लाइक यार स्कूल खत्म हो जाएगा, ये मीन गर्ल्स उधर की उधर ही रहेंगी लाइफ में। इन लड़कियों का कुछ काम नहीं है, सिर्फ लोगों को बुली करना, नीचा दिखाना, इनका कुछ नहीं होता है। कार्मा आएगा इन लोगों के पास, याद रखना। I mean, अभी तक इन लोगों को कार्मा हिट नहीं किया है। I'm still waiting, but let's be hopeful. Now, in no way am I saying to overcome bullying you have to lose weight, or just because they're bullying you about your weight you have to lose weight to feel more confident. That's not what I'm saying. But मेरे केस में वो था because मेरे को ऐसा लगा I want to be my best version. I want to be the hottest version of myself. I want to look amazing. I want to be so amazing कि भाई कोई मेरे साथ इस तरीके से फिर से कभी बात नहीं करे। बस
यही था मेरा गोल। ऐसा लोग कर सकते हैं भाई मेरे साथ बात, मतलब मैं तो इतनी स्टूपिड हूँ कि भाई मेरे को कुछ डाइट शाइट का पता नहीं। मेरी बहन है यहाँ पे जिसके एब्स हैं, मतलब मेरी बहन है यहाँ पे जिसके एब्स हैं, परफेक्ट है, ठीक है। लेकिन अब ये हम दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बट क्योंकि ये स्कूल के मेरे स्टूपिड बच्चों ने मेरे माइंड में डाल दिया बिकॉज दैट आई लैक समथिंग, मैं खुद को समझने लगी यस आई लैक समथिंग। वेट, तो मैंने ना फर्स्ट टाइम क्या किया था, मैंने सोचा कि मैं वीगन हो जाती हूँ, ठीक। मैंने नहीं पढ़ा था इफ यू गो वीगन यू आर लिटरली कटिंग ऑल द फैट्स आउट, तो मैंने बोला चलो वीगन हो जाती हूँ, ठीक है। तो मैंने 1 हफ्ता वीगन हो गई, कुछ नहीं हुआ मेरी बॉडी में। मैं वेजिटेरियन ही हूँ, मैं बाय बर्थ वेजिटेरियन हूँ, ठीक है। मैं बहुत अनहेल्दी ट्रैक पे ही जा रही थी लाइफ के, ओनली ईटिंग जंक फूड। पता है भाई मेरा जोमेटो का बिल जानो कि 2020 का कितना था, तो मेरे को मन करता है कि ये खुद को थप्पड़ मार दूं। स्पेंड किया जोमेटो पे मैंने ना। ये सारी लड़कियां पता है स्कूल आती थी, ठीक है। मैं खाना खाते पीते वाला बच्चा हूँ, ठीक है। तो मैं अपना फकिंग पूरा राजमा चावल सब लेके जाती थी। मैं अकेले लास्ट बेंच पे बैठा है बंदा, ठीक है। उस पे ये औरतें आ रही हैं और बोलती है मेरे को कि हाउ कैन यू ईट सो मच, मेरे से तो इतना राजमा कभी खाया ही नहीं जाता। मैं बचपन से सबको ये लाइन बोलती हूँ, हाँ मैं खाते पीते घर की हूँ, मैं खाती हूँ, आई लव देसी घी। तो मैं ऐसे ही इन लड़कियों को टाल देती थी। भाई मैं तो टिल डेट रोज राजमा चावल दाल मखनी खाती हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेंटली आप ठीक रहोगे ना, पूरी बॉडी फिट रहती है। मेरी स्कूल की यूनिफॉर्म जो थी ना मुझे फिट नहीं आने लगी थी। और फिर ना ये एक लड़की थी मेरी फ्रेंड क्या बोल रही, मेरी लड़की को मेरा फ्रेंड क्यों बोल रही, मैं तेरी फ्रेंड नहीं थी, चुड़ैल थी, ठीक है। ये मुझे बोल रही है मैं तो 5th स्टैंडर्ड से एक ही यूनिफॉर्म चला रही हूँ, लाइक माय वेस्ट हैज बीन द सेम साइज। तो फिर ना अब मैंने स्कूल जाना एकदम बंद कर दिया। अब मैं मेरे घर पे बोल दी कि मेरे को नहीं जाना है, बस मैंने घर पे रोना वोना कर दिया कि मेरे को नहीं जाना है, मेरे को नहीं जाना है। तो बेचारे गए स्कूल में, उन्होंने बोला कि मेरे बच्ची को बुली किया जाता है। ये टीचर इतनी बड़ी बिच है स्कूल में, इसने पूरे क्लास के सामने ये बोला कौन रिद्धि पटवा को बुली कर रहा है। वो उसने ये बहाना दिया है घर पे स्कूल नहीं आने का और पढ़ाई नहीं करने का कि उसको लोग बुली करते हैं। लाइक नेक्स्ट डे मैं आई हूँ स्कूल, सारे बच्चे किसने बुली किया। आई एम लाइक अच्छा ठीक है। ऐसी कोई ट्रूथ और डेयर ये लोग खेल रहे थे, मैं इन्वॉल्व भी नहीं हूँ, ठीक है। इन लोगों ने जबरदस्ती मेरा नाम लिया कि आई डेयर यू टू किस रिद्धि पटवा। तो वो बोलता है कि छी मैं वृद्धि जैसी लड़की को तो कभी डेट ना करूं, वो इतनी अनकिसेबल है। I would really like to say that he was wrong, but you know मेरा situation is still very dry as fuck। ये लड़की इतनी दुष्ट होती है मेरे को सबके सामने। उस दिन ना स्कूल में मैं चल रही थी, उसमें ये मैडम आती है कि मेरी फकिंग स्कर्ट को टच कर रही है, मेरे ऐसे बॉडी पे पूरा ऐसे बॉडी कॉन ड्रेस जैसे कर रही है। बोलती है वृद्धि की तो एस भी अभी तक नहीं है। I'm like what? मैंने तो लिटरली यही बोला तेरी जैसी नहीं, क्योंकि खुद तो मैडम खुद को काइली जेनर समझ रही है, बट इम्प्लांट था ना तेरे। तो मैंने डिसाइड कर लिया अब स्कूल खत्म होने वाला है, मैं अपना वेट लूज करने वाली हूँ, मैं अपना मोस्ट कॉन्फिडेंट वर्जन बनूंगी। तो बेसिकली मेरा वेट ये था, मेरा वेट लूज हुआ लॉकडाउन में। मैंने 3 महीने एकदम अच्छे से डाइट करी थी। मैंने कुछ ऐसा अनहेल्दी वे में नहीं कि मैंने 2 दिन खाया नहीं, 2 दिन ये नहीं किया। दैट इज नॉट द वे टू लूज वेट। मैं ये बोल भी नहीं रही कि वेट ड्रॉप या वेट गेन से आपको मोर कॉन्फिडेंट फील होगा। भाई लिटरली मैं बोलना चाहूंगी ये लुक्स कभी मैटर नहीं करते। क्या जेफ बेजोस हॉट है, क्या अडानी हॉट है, नहीं, बट दे आर द रिचेस्ट पीपल। मोस्टली लड़के लड़कियां जो ये करते हैं वो करते हैं बिकॉज वो अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं। इट्स लाइक एक नर्ड को बुली करना बिकॉज ही स्मार्ट, लाइक व्हाट। So like मेरे से इतनी हॉट लड़कियों से हमें घूमती है, but like I am me, I am Kendall Jenner. I always act like that, but I'm literally telling you, fake it till you make it. भाई fake it till you make it. If you act, you are confident, you are going to be confident. Trust me, 2 days, 3 days, 1 week, 1 month, you won't feel that way, but you will become confident in reality and everyone else will see it. Love you guys. I hope you guys liked it. पता नहीं इसका purpose क्या था, but I just wanted to share my story. I just wanted to tell you all. मैं literally बोलती हूँ, just do whatever you want. जज करना किसी को और किसी को बुली करने में जमीन आसमान का फर्क होता है, ठीक है, ये याद रखना। चलो बाय। बहुत आज के लिए बहुत सेंटी इमोशनल टॉक्स।